नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस क्यूबेसिक ग्राफिक्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि कैसे एक्सपोर्ट द ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स जो है इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। You have optimized your graphics, so now you are ready to export it as a JPG file. Joint Picture Expert Group JPEG जो होता है उसका एक्सपेंड करने पर होता है। इसका दोस्तों इसमें फाइल जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पहला है चूज फाइल, उसके बाद एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ये ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको इस तरह से फाइल नेम देना होगा। सेव एज टाइप इमेज ओनली, ठीक है। ये सब करके जो है इसको हमें फिर बाहर द फाइल नेम लिस्टेड हैज ए .jpg extension fireworks। Choose this file format because you selected it in the Optimize panel. Navigate to the tutorial 1 folder that you downloaded. Ensure that the save as type or save as the JPG file is exported to the location you specified. Remember that PNG file in your source file or working file, although you have exported your document in JPG format, you also must have the PNG so that any changes you made will be reflected in the source file as well. Choose file, save to save the changes to the PNG file, choose file, close। तो यहाँ तक के जो है ये हम लोग इसमें तो समझने की नहीं है, ये स्टेप दिया हुआ है, इसको वर्क करने का है, इसमें समझने जैसी कोई चीज़ है नहीं। ग्राफिक्स डिजाइन बेसिक ट्यूटोरियल्स, व्यू द एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। अब इसको एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे कैसे। The new file created during the export process is located in the file folder you specified. The Fireworks choose file, open and browse to the export folder. Fireworks created a file in this location called vintage.jpg. Select vintage.jpg and click open. The graphic opens in a new document, Windows in Fireworks. In the layers panel, all your objects have been flattened. When objects are flattened, they merge into a single object and are uneditable as separate objects. The graphics opens in the new document Windows in Fireworks.
in the layer panel, all your objects have been flattened. When objects are flattened, they merge into a single object. बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मर्ज होकर फ्लैटेंड हो जाते हैं, तो मर्ज होकर के सिंगल ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं एंड आर अनएडिटेबल। इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। इसको फिर से हम सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जो है इसको समझ गए हैं और इसको वर्क करने का बात है दोस्तों। इस पर हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें समझने जैसी नहीं है, ये स्टेप्स जो है इसको वर्क करने की है। द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिस्प्लेज प्रॉपर्टी फॉर ए बिट मैप, all the life effect and other attribute you applied using the property inspectors are no longer available for the selected bitmap. The document looks this way because Fireworks had to flatten the image and all its properties. When you choose to export it to JPG format, however, you still have your source PNG file. So, if you need to do more work on the design, you can always open the PNG file and all the objects will still be editable. Choose file, open and select vintage.png in the tutorials folder. Click open. In the layer panel, all your objects are again available as separate objects. Each object is editable along with its properties. दोस्तों जब ये ऑब्जेक्ट्स जो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह होगा तो फिर प्रत्येक को हम एडिटेबल इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब उस समय जो सारे ऑब्जेक्ट्स मिल कर के मर्ज हो कर के सिंगल हो जाता है तो उस समय जो है ये एडिटेबल हम वो उसको एडिट नहीं कर सकते। क्लिक ईच ऑब्जेक्ट्स। The property inspector displays the various options for each object you select. Select the vintage text on the canvas. The drop shadow live effect for this text object appears in the property inspector. You can now see the benefit of using a Fireworks PNG as your source file. You can make changes to a document and it always remains editable, even if you choose to export the document to another format such as JPEG. Take the next step. You have accomplished the task required to create graphics in Fireworks. You learned how to create and save a new document and how to add both vector objects and bitmap graphics to your document. You also applied live effect works with layers, created a mask and added text. Finally, you learned to export the completed graphics.
You have accomplished the task required to create graphics in Fireworks. You learned how to create and save a new document. दोस्तों यहाँ हम लोग समझ गए कि कैसे हमें नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है और सेव करना है, एंड हाउ टू ऐड बोथ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स एंड बिटमैप ग्राफिक्स टू योर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में वेक्टर ऑब्जेक्ट्स और बिटमैप ग्राफिक्स को कैसे ऐड करेंगे, ये दोस्तों हम लोग समझ गए। हम लोग यू ऑल्सो अप्लाइड लाइव इफेक्ट। हम लोग लाइव इफेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, वर्क विथ लेयर्स, लेयर के साथ कैसे काम करेंगे, क्रिएटेड ए मास्क कैसे क्रिएट करेंगे, एंड एडेड टेक्स्ट को ऐड कैसे करेंगे। फाइनली आप जो है अभी समझ गए टू एक्सपोर्ट द कंप्लीटेड ग्राफिक्स, पूरे कंप्लीटेड ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसमें दोस्तों हम लोग फिर से इसको एक रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर हैं, उसमें जो है मॉनिटर जो है उसकी साइज़ फिक्स होती है दोस्तों, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो उसके स्क्रीन पर जितना जो इमेज आवेगा तो उसमें जो है जो इमेजनरी लाइन है स्क्रीन पर, डिफरेंट स्क्रीन रिसोल्यूशन स्क्रीन, जैसे पहला नॉर्मल है, नॉर्मल स्क्रीन जो है, या उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट रिसोल्यूशन स्क्रीन। दोस्तों इसमें 25 लाइन और 80 कॉलम्स होता है। तो ये 25 लाइन और 80 कॉलम्स जो इमेजनरी है, इससे जो है इसके इंटरसेक्शन से बॉक्स बनता है, और प्रत्येक बॉक्स को पिक्सल कहा जाता है दोस्तों। तो नॉर्मल जो स्क्रीन है जिसको टेक्स्ट रिसोल्यूशन स्क्रीन कहा जाता है, उसमें 25 × 80 पिक्सल होता है। स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 4 से लेके 79 तक, फिर 0 1 2 3 4 से लेके 24 तक। तो अब अगर एरिया, मॉनिटर का एरिया नहीं बढ़ा और नंबर ऑफ लाइन और कॉलम अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ेगा, लेकिन उसकी साइज छोटी होगी। तो इसका मतलब टेक्स्ट रिसोल्यूशन स्क्रीन में 1 पिक्सल का जितना साइज होता है, ग्राफिक्स रिसोल्यूशन स्क्रीन में नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ कॉलम के ज़्यादा होने से पिक्सल का साइज छोटा होता है। उससे भी छोटा होता है ग्राफिक्स साइंटिफिक रिसोल्यूशन स्क्रीन में, जिसमें नंबर ऑफ लाइंस और भी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी और भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए पिक्सल और भी छोटा होता है। और दोस्तों जितना आपका पिक्सल छोटा होगा आपकी ड्राइंग उतनी ही एक्यूरेट होगी, आपकी ड्राइंग उतनी ही एक्यूरेट होगी। उतना एक्यूरेट इमेज बनेगा। तो यही जो है वो ग्राफिक्स है। अब उसकी मूवमेंट का हम लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं दोस्तों। अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को मूव करता है स्क्रीन पर, उसकी मूवमेंट होती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया रो लाइन हॉरिजेंटल लाइन, और वाई एक्सिस हो गया कॉलम वर्टिकल लाइन। तो दोस्तों 0 0 जो है वो एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होता है,
जहाँ पर 0 रो और 0 कॉलम होता है। और उससे अगर राइट जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टली राइट अगर इमेज मूव कर रहा है, तो कॉलम नंबर बढ़ेगा, रो नंबर कांस्टेंट होगा। अगर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो रो नंबर बढ़ेगा, कॉलम नंबर कांस्टेंट होगा। और अगर लेफ़्ट जा रहा है तो फिर कॉलम नंबर घटेगा और रो नंबर कांस्टेंट होगा। या फिर अपवर्ड जा रहा है तो रो नंबर घटेगा, कॉलम नंबर कांस्टेंट होगा। उसी तरह अगर डायगनली राइट एंड अप जा रहा है तो रो नंबर घटेगा, कॉलम नंबर बढ़ेगा। उसी तरह डायगनली डाउन एंड लेफ़्ट जा रहा है तो कॉलम नंबर घटेगा, रो नंबर बढ़ेगा। उसी तरह डायगनली अप एंड लेफ़्ट जा रहा है तो कॉलम नंबर घटेगा, रो नंबर भी घटेगा। उसी तरह डायगनली डाउन एंड राइट जा रहा है तो रो नंबर भी बढ़ेगा और कॉलम नंबर भी बढ़ेगा। इस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। हमारे इमेज का पोजीशन आता है, स्क्रीन पर लोकेट किया जाता है उसको पार्टिकुलर पिक्सल के पोजीशन कोऑर्डिनेट से, और फिर उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो तो वहाँ फिर डिस्प्ले होगा, फिर वहाँ होगा। तो और ये जल्दी जल्दी होगा तो उसकी लगती है जो वो मूवमेंट ये मूव कर रहा है और उसकी मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इस सब में पूरी तरह से समझ गए। अब इस कोई भी ऑब्जेक्ट्स या इमेज को हम लोग जो मूव करते हैं प्रोग्राम के थ्रू जो मूव करेंगे, अब हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू जो मूवमेंट करेंगे तो ऐसे ही मूवमेंट होगा। क्यूबेसिक में हम लोकेट कर लेंगे स्क्रीन के पोजीशन को और फिर उस पॉइंट पर डिस्प्ले करेंगे, और फिर अगले बार जो है फिर उसको कॉलम नंबर बढ़ाते जाएंगे और फिर वो डिस्प्ले होता जाएगा। तो इस तरह से वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए, डिस्प्ले करते हुए ऐसा दिखेगा। तो आप जिस डायरेक्शन में भी उसको मूव करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इमेज क्रिएट होता है, पिक्सल होता है। पिक्सल जो कहा जाता है, जो वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनता है उसी को पिक्सल कहा जाता है। और जो पिक्सल जितना छोटा होता है, जिसका साइज जितना छोटा होता है, इसका मतलब जिस रिसोल्यूशन स्क्रीन में नंबर ऑफ रो और कॉलम ज़्यादा होगा उसका पिक्सल छोटा होगा, उसकी फिगर एक्यूरेट होगी, उसके फिगर में क्वालिटी होगा। जिसमें ऐसा नहीं होगा उसके पिक्चर में क्वालिटी नहीं होगी। ये तो बिल्कुल समझने की बात है। अब सारे जो हैं ये स्क्रीन जो है, बहुत सारे स्क्रीन के फॉर्मेट्स हैं। तो उस फॉर्मेट्स में हम अपने स्क्रीन को लाते हैं, मॉनिटर को, और फिर जो है उसमें हम अपना ये ग्राफिक्स इमेज डालते हैं। कुछ अभी जो विंडोज़ के थ्रू जो होता है उसमें जो है आप स्क्रीन का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम के थ्रू ये चेंज करते हैं, प्रोग्राम उस पर क्रिएट करते हैं, तो उसको कैसे होगा ये आपको सीखना है। जैसे डेट वैलिडेशन है। अब कोई अगर ये कहे जो नवंबर में 31 नवंबर अगर होता है तो ये इनवैलिड डेट है। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इनवैलिड डेट कर रहा है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है। लेकिन अगर आप उस सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, डेट वैलिडेशन के प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं खुद, तो उसके लिए जो है आपको क्यूबेसिक से प्रोग्रामिंग करनी होगी।
तो आप प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, और रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर है, ऐप जो है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो लोग जो है ऐप के थ्रू आसानी समझते हैं, आसान होता है करना। जैसा हम आपको इस क्लास में बतलाए, इसमें आसान होता है करना, लेकिन आप प्रोग्राम के थ्रू भी वो कर सकते हैं। आप प्रोग्राम उस पर लिखेंगे और फिर उस तरह से जो है आप प्रोग्राम को फिर डिबग करेंगे, फिर सेव करेंगे और फिर रन करेंगे। तो इस तरह से जो है आप ये सारे चीज़ बना सकते हैं। रन करने के बाद जो फाइल बनेगा वो एक्सिक्यूटेबल फाइल होगा, और वही फाइल रन करता है। फिर आपको उसमें अगर कोई चेंज करना होगा तो फिर से आप प्रोग्राम्स को एडिट करके मेन प्रोग्राम्स को और फिर से उसको रन करना होगा, तभी वो एक्सिक्यूटेबल फाइल चेंज होगा। डायरेक्ट एक्सिक्यूटेबल फाइल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग समझ गए होंगे कि ये आज का वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें आप सभी इसका प्रैक्टिकल करके